Good morning, dear students. So, how are you all? I hope you all are fine. I think after 2 or 3 days, I am sending the video for doing work. Am I right? Yes, because on Friday, Saturday, though we have done revision. Yes. So now it is the time of work. Okay. So as you know, we have done the points like how microorganisms clean the environment. Yes, what is the vaccine? Vaccination important क्यों है? How microorganisms increase the soil fertility? Biological nitrogen fixers क्या हैं? ओके सो अभी तक हम बेनिफिशियल पढ़ चुके हैं कि इनके बेनिफिट क्या हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हमारी डेली लाइफ में. ओके सो नाउ इट इज़ अ टाइम टू स्टार्ट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके हमें अब ये पार्ट स्टार्ट करना है. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. Okay, microorganisms disease cause करते हैं human beings में भी, plants में भी and animals में भी. Such disease causing microorganisms are called pathogens. ओके ये हम डेफिनेशन पहले कर भी चुके हैं आई थिंक. व्हाट आर पैथोजेंस? द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. इट इज़ अ डेफिनेशन. ओके वर्ड ये है एंड द डेफिनेशन एज आई टेल नाउ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. Now we will study about the disease causing microorganisms in humans. Okay. So pathogens क्या है? The disease causing microorganisms. Pathogens enter our body through the air we breathe. Okay. जैसे हम breathe करते हैं तो through air they enter in our body. The water we drink और the food we eat. ओके जो हम एयर अपने अंदर लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. और कैसे कैसे ट्रांसमिट होती हैं? If we are coming in the contact an infected person means जिसको कोई डिजीज़ ऑलरेडी है. Okay, or it can be carried by animals also. Microbial diseases that can spread. I am here now. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Clear? जो डिजीज़ किससे फैलती हैं? एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से. दोज डिजीज़ आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड यू कैन ऑल्सो से दोज इन्फेक्शियस डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ को और क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़. ओके सो एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी? कम्युनिकेबल डिजीज़ की. ओके एक तो कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल है. क्लियर? ये होती हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल आर नॉन इन्फेक्शियस. क्लियर? सो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब एक पर्सन को कोल्ड होता है एंड व्हेन ही स्नीज और शी स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स here. Now here fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. That is why it is being said कि whenever we are sneezing, we should cover our mouth. हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए by hand, by hanky. Okay. The virus may enter the
body of a healthy person while breathing and cause infection. ओके ऐसे स्नीज से क्या हुआ, जो वायरस थे डिजीज़ के, ओके, दे बीइंग स्प्रेड इन द एयर, और जब हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर किया तो क्या कोज करते हैं, फिर इन्फेक्शन कोज करते हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट क्या है, दिस पैराग्राफ इज देयर नाउ. नेक्स्ट here there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कैरियर मीन्स जो डिज़ीज़ को ले जाते, कैरी करते हैं. कैरी करना मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. क्लियर. विच एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई जो मोस्टली घर में देखने को मिलती है. देन व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउस फ्लाई आर लिविंग आउटसाइड ऑल्सो. दे आर सिटिंग ऑन द मैनी थिंग्स. yes, and the same they are coming at our house also. They are sitting on our food. That is why it is being said the food should not remain open. We should always cover it. हमेशा covered food ही खाना चाहिए. Okay, because if we are eating the open food, that is not properly safe. Safe नहीं है. Okay, so housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Animals के waste पे भी बैठते हैं, garbage पे भी बैठते हैं house flies. And pathogens stick to their bodies. Okay, जो disease causing microorganisms हैं, microbes हैं, उनकी body से stick हो जाते हैं. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. जब वही flies हमारे घरों में आती हैं, and when they are sitting on the uncovered food and that food is consumed by us, in this way they are transferring the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. Contaminated means polluted. So it is advisable to always keep food covered. Food को हमेशा cover रखना चाहिए. Avoid consuming uncovered items of food. We should not consume uncovered food. We should avoid it. Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito, which is responsible for causing malaria. Which mosquito is there? Female Anopheles, which carries the parasite of malaria, that is Plasmodium. Okay, parasite का नाम क्या है? Plasmodium. Female Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले. Yes. How can we control the spread of malaria or dengue? How these can be controlled? I think up to here everything is clear. It is very easy ना. Means जो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पता भी हैं बट हम फॉलो नहीं करते. It is about that only. Okay. So next करते हैं. How the spread can be prevent of communicable. We know easily. हमें पता है इस बात का. We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from the infected persons. Yes. Nowadays what is going on? We should wear mask. पहले तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है. It is not important. Okay. Nothing is important than our lives. लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. अननेसेसरीली बाहर नहीं जाना किसी को भी. क्लियर. बिकॉज नाउ बेटा यू नो इन दिस पेंडेमिक ना इट इज़ इन आवर हैंड्स ऑल्सो हाउ वी आर कीपिंग आवर सेल्फ सेफ. हम अपने आप को सेफ कैसे कर रहे हैं. क्लियर. सो इसके बाद है ये वाला. दिस पिक्चर इज गिवन ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो. Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? What is happening when rain is there? At many places water get collected. Stagnant water. Stagnant means the water which remains stagnant at one place for a long time.
तो उसमें क्या होता है, बिकॉज दैट प्लेस बिकम द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज़, वहाँ पे मॉस्किटोज़ की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि बिकॉज इन दिस वे तो दे विल कॉज डिजीज टू अस। ओके, दैट इज़ वाई water should not let collected anywhere. Okay, wherever we see we can clean it. अगर हमारे नेबरहुड में कहीं दिखता है तो विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स फैमिली इट कैन बी क्लीन्ड इजीली, बिकॉज हमें अपने आप को भी तो बचाना है ना, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ सेफ। सो ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect anywhere in coolers. Nowadays summer time is there and what is to be done, जो कूलर में although nowadays we are not filling water in the coolers, but जब भी फिल करते हैं तो it is very important to clean that water. okay, because अगर हम सेम वाटर यूज़ करते हैं 3 or 4 days तक भी then it is not good, उसमें मॉस्किटोज़ हो जाते हैं, you can see yourself. So it is to be cleaned properly. Tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Okay, breeding means जो उनके नंबर इंक्रीज होता है. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. How the spread of malaria can be prevented. Okay, हम मलेरिया से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. आई थिंक अप टू हियर इज़ क्लियर. आप लोग रीडिंग कर रहे हैं ना साथ में, यू ऑल आर डूइंग रीडिंग विद मी. इज़ योर पेंसिल मूविंग एज आई एम स्पीकिंग? इफ़ यू आर नॉट डूइंग स्टिल प्लीज़ डू इट. अगर अभी बुक पास में नहीं है, पेंसिल हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ टेक इट क्विकली. वीडियो को पॉज करें और बुक लें. एंड सम स्टूडेंट्स हैज़ नॉट परचेज द बुक स्टिल. बुक भी परचेज़ नहीं करिए, पता है मुझे. प्लीज़ परचेज एज सून एज पॉसिबल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट. सो here one diagram is given, table, not diagram, it is table. Some human diseases are given here. causative microorganism कौन सा है, मीन्स बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर से, वाटर से, फूड से, कॉन्टैक्ट से. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, हम उनसे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं बीमारियों से. ओके, मीन्स इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ. क्लियर? सो देयर आर सम डिजीज. ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोज करता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर. एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स दैट पेशेंट शुड बी केप्ट अलोन. ओके, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. जो चीज़ें पेशेंट की हैं दूसरे उनसे दूर रहें, दूसरे उनको टच ना करें. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन. क्लियर? सो नेक्स्ट है मीजल्स, कौन कोज करता है, वायरस. और चिकन पॉक्स भी वायरस कोज करता है, पोलियो भी वायरस कोज करता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीजल्स का एयर, चिकन पॉक्स का एयर एंड कॉन्टैक्ट, पोलियो का भी एयर एंड वाटर. Okay, and same preventive measures are there for these disease. Next है cholera and typhoid. Now we are here, cholera and typhoid. causative microorganism कौन सा है, बैक्टीरिया. कोलेरा भी और बैक्टीरिया भी. कौन टाइफॉइड कौन कोज करता है, बैक्टीरिया. कोलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एंड फूड. ओके, एंड टाइफॉइड का वाटर. प्रिवेंटिव मेजर्स इन दिस पॉइंट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन,
दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, मीन्स अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए, कोज कौन करता है? वायरस। मलेरिया कौन कोज करता है? प्रोटोजोआ। ओके, एंड हेपेटाइटिस ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर, मलेरिया मॉस्किटो। प्रिवेंटिव मेजर्स, हेपेटाइटिस ए ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, ओके, एंड वैक्सीनेशन। एंड फॉर मलेरिया यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings. That is why water should not let collected in the surroundings. Clear? So mosquito net use करने से, and like all outs are there, although these are some dangerous also, जो इनसे केमिकल निकलते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे भी नहीं होते हैं, okay. So we should keep ourselves safe from these things. Clear? किसी को कोई डाउट यहाँ तक अभी तक? I think everything is clear to everyone. Okay. So now here, disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants, but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous disease, human and cattle disease caused by a bacterium. Anthrax किससे cause होती है? बैक्टीरिया से. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Disease सिर्फ plants और human beings में नहीं होती, these are also being caused in the animals. Okay, so disease causing microorganisms in plants. This chart is being given here. Okay, उसके बाद ये पार्ट रहता है, so हम करेंगे आज disease of plants. Clear? And I think many students think ma'am is giving so much questions. Yes, beta, the questions I am giving related to chapter, although I am leaving some questions, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ. Okay, so as much as I am giving, please do everyone, आप साथ साथ में करते रहें. Clear? किसी को कोई डाउट आए कहीं पे भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट प्लीज़ वर्क मत छोड़ना. ओके, एंड जितने क्वेश्चन मैं दूँगी वही सबको करने पड़ेंगे, because I didn't want that any question will be left, okay, related to the chapter. Everything you should know. Clear? So let us start. Disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. You know this point very well. If there is the disease in the plants, obviously the farmers will not get good crop, and if they are not getting good crop, they will not get the better yield. Yes, so plants have a disease हैं जो crop की yield को decrease कर देती हैं. Clear? So table 2.2, for some such plant diseases, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbes. कुछ केमिकल की हेल्प से कंट्रोल हो सकते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं. सो लेट अस स्टडी सम प्लांट डिजीज. ओके, प्लांट डिजीज है सिट्रस कैंकर. ये किस में होती है? इट इज़ इन लेमन. ओके, इट इज़ इन लेमन, सिट्रस फ्रूट्स में. रस्ट ऑफ व्हीट में. येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा. ओके, भिंडी में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? सिट्रस कैंकर बाय बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट बाय फंजाई, एंड येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, इट इज़ बाय वायरस.
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका? सिट्रस कैंकर का एयर, रस्ट ऑफ व्हीट का एयर एंड सीड्स, और येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी इंसेक्ट। क्लियर? इनसे डिजीज़ कोज होती हैं किसमें? प्लांट्स में। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है, एयर एंड सीड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। क्लियर? ओके, सो आई एम गिविंग वन वर्क ऑल्सो हियर। एक तो ये टेबल सम कॉमन प्लांट डिजीज कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की आप लोग बुक में बनाए, नोटबुक में बनाएंगे ये। ओके ओके, लीव इट, बुक में है ऑलरेडी, सो लीव इट बिकॉज आई लीव क्वेश्चंस ऑल्सो। बुक में नोटबुक में मत ड्रॉ करना। ओके, बट इट इज़ टू बी लर्नड बाय एवरीवन, ये सभी को लर्न करनी है, ये प्लांट वाली भी और वो ह्यूमन बींग्स वाली भी जो हमने इससे पहले की थी। ओके, सो दीज टू टेबल्स आर टू बी लर्नड बाय एवरीवन। फाइन? ओके बेटा, बाकी का पार्ट हम कल करेंगे। द चैप्टर विल बी ओवर टुमारो, चैप्टर कल ओवर हो जाएगा। क्लियर? कल हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, मीन्स विल स्टार्ट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, किन किन तरीक़ों से फूड को प्रिजर्व करते हैं, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, दिस वी विल डू टुमारो। क्लियर? एनी डाउट? आई थिंक डाउट तो नहीं होगा, कभी होता ही नहीं आप लोगों को डाउट। आई डोंट नो वाई यू आर नॉट टेलिंग एनी डाउट। हालांकि कई आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर हैविंग, बट इवन देयर आर नॉट टेलिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर? सो बेटा, वर्क इज़ डन अप टू हियर, लर्निंग इज़ बीइंग डन अप टू हियर। आई विल सेंड सम क्वेश्चंस, आप लोग फेयर में कर लेना। ओके, एनी डाउट? ओके बेटा, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय क्लास।